Hello and welcome everyone. This is the second part of the chapter Challenges to Nation Building. In the first part, I explained about the end of the British rule in India and the challenges that India faced at the time of independence. Now, in this part, I am going to discuss the partition of India, the plan of partition, and the problems in that plan of partition and the consequences of partition that the country saw. So let's begin the chapter. Let's begin this part. The process of partition. So in the first part, I have already told that it was decided that the country is going to get independence along with partition. So this plan of partition, which is also called the Mountbatten Plan, was proposed by Lord Mountbatten, who was the last Viceroy of India, on 3rd of June 1947. Okay, this was also called the Mountbatten Plan, and this plan was ratified by the British Parliament on 15th July 1947. And according to this plan, India was going to get independence along with the partition. It means that two independent dominions will be created. One will be Pakistan and the other will be India on 15th of August 1947. Okay, so this date is very important. Please remember this date. So now the country was going, in the previous video I have explained that the country was divided on the basis of the religious majority. So two nation theory became the basis of the partition of India, and by the formula of religious majority it was decided that the Muslim majority areas will be going to will form Pakistan and the rest of the area will remain with India. Okay, so that was the plan of partition. And actually, there were four things in this. Number one was that the Muslim majority areas will form Pakistan. Second, India will comprise the rest of the areas. Then third, that the princely state. There were about 65 princely state, 565 princely states in India at that time. So it was decided that the paramountcy of the British Crown will end on 15th August 1947 on these princely states, and then they would be independent to join either India or Pakistan or remain independent as whatever they wish. And then the fourth thing that was decided in the plan of partition was that the two biggest provinces of India, that is the Punjab and Bengal, where the population of Hindus and Muslims were almost 50-50 equal. So it was decided that these two provinces will be divided between the two dominions, the two new dominions, that is India and Pakistan. Okay. So now we will see that what were the problems in this plan of partition. तो ये जो 3rd June 1947 का partition plan, जिसको हम लोग माउंटबैटन प्लान भी कहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है. That so many the four problems that were there in the plan of partition was that there was no single belt of Muslim majority areas in British India. सिंगल बेल्ट का मतलब देखिए, अब अगर हम इस मैप से इसको समझें तो ये मैप आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है. नाउ इन दिस मैप if you see this was the entire इंडिया बिफोर पार्टीशन. ये पूरा पार्टीशन के पहले का इंडिया है, जितना कलर्ड पोर्शन आपको इस मैप में दिख रहा है. तो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी. एक मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया जो था वो इधर पड़ रहा था, ये ओके, और दूसरा जो बंगाल को डिवाइड करके क्रिएट किया गया था वो ये पड़ रहा था. और इन बिटवीन दीज टू एरियाज देयर लाइड अ लॉन्ग stretch of territory that
was going to India. So this was the problem. यहाँ पे कोई continuity नहीं है. If West Pakistan has to go to East Pakistan, how these two portions which are divided by a long stretch of territory with some other country that belongs to some other country can manage themselves after independence. So if West Pakistan has to control East Pakistan, तो वो कैसे, accessibility कहाँ से है? या तो फिर आप ये सी से पूरा क्रॉस करके यहाँ पहुँचिए, और नहीं तो इंडिया आपको परमिशन दे कि आप यहाँ से उसके थ्रू आप जा सकते हैं, जो कि इंडिया कभी नहीं करता और नहीं इंडिया ने किया. ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसी का ये जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि आफ्टर सम टाइम ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड देन इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो ये डिसाइड हुआ था कि ये दो स्ट्रेच ऑफ एरियाज हैं, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज, तो दो बोथ ऑफ देम विल बी गोइंग टू पाकिस्तान. दिस विल बिकम वेस्ट पाकिस्तान, and the area towards the east, which was by dividing the province of Bengal, this will be called East Pakistan. तो दो विंग्स पाकिस्तान की क्रिएट हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान. ओके, वन इन द वेस्ट एंड द अदर इन द ईस्ट. ओके, तो ये पहली प्रॉब्लम तो ये थी, सबसे बड़ा जो फॉल्ट था पार्टीशन के प्लान में वो ये था. Second is that not all majority Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Now ये जो केस है ये particular reference to NWFP है, that is North West Frontier Province. अब ये था क्या, इसको यहाँ मैप में देखिए, see this area is the Northwest Frontier Province. Okay, now this area was a Muslim majority area, but a popular leader in this area was this man whose name was Khan Abdul Ghaffar Khan. Okay, now Khan Abdul Ghaffar Khan was a Gandhian who was an ardent Gandhian. You can see in the picture along with Gandhi, and he believed in Gandhi, and therefore he was against the partition of the country, number one. And if partition, he was deadly against that NWFP should form a part of पाकिस्तान. तो इन्होंने इसका बहुत विरोध किया, और इनको सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है. ही इज नोन बाय दिस नेम पॉपुलरली, फ्रंटियर गांधी. गांधी बिकॉज ही बिलीव्ड फर्मली इन द आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी. गांधी जी के भक्त जैसे थे वो. और फ्रंटियर इसलिए क्योंकि जो प्रोविंस है वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. एंड इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वहाँ पे, खुदाई खिदमतगार्स. And these Khudai Khidmatgars had opposed the partition of the partition of India and NWFP going to Pakistan. Then this was decided कि जो NWFP है उसमें एक रेफरेंडम होगा. रेफरेंडम मतलब पब्लिक वोट लिया जाएगा, और उससे डिसाइड होगा कि ये किस तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ जाएगा. तो जो रेफरेंडम हुआ था दैट वाज बायकॉटेड बाय द खुदाई खिदमतगार्स. वो खान अब्दुल गफ्फार खान और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने उस रेफरेंडम को भी बायकॉट किया था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रेफरेंडम वेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड NWFP बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तीसरा चीज़ जो ये था कि जो दो प्रोविंस थे, पंजाब और बंगाली, जो अभी मैंने आपको बताया पंजाब और बंगाल, इसमें जो पॉपुलेशन थी वो बहुत मिक्स थी, एरियाज भी बहुत मिक्स थे, और ये बहुत बड़े प्रोविंस थे. अगर आप बंगाल को देखने जाइए तो पूरा बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस ये है. और पंजाब जो आप अभी का पंजाब देखते हैं वो पंजाब और हरियाणा और हिमाचल, तो इंडिया साइड में अगर आप देखिए तो ये सब मिला के पंजाब हुआ था. इट वाज ये जो बाइफर्केशन है पंजाब हरियाणा हिमाचल का, ये हुआ है 1967 में. ओके, तो इसके पहले ये पूरा पंजाब ही था. एंड टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड it is all Punjab. So if you see the area of Punjab, it will be almost this much. So this much area. So it was a big province. Second thing, the population was very mixed in all the cities, in all the regions. So it was decided that these two provinces will be
डिवाइडेड। अब डिवाइड करने के लिए ये पार्टीशन प्लान, माउंटबैटन प्लान में ही डिसाइड हो गया था कि इन दोनों प्रोविंस को डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। एक्चुअली दो बाउंड्री कमीशन थे फॉर बोथ द प्रोविंसेस, वन फॉर पंजाब द अदर फॉर बंगाल। एंड दिस बाउंड्री कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे, इनका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। शायद आप लोगों ने सुना हो, Cyril Radcliffe. So now this Cyril Radcliffe, he came to India on 8th July. 8th July 1947 he came to India। और आपको पता ही है कि जो इंडिपेंडेंस की डेट थी वो क्या थी, 15th August 1947। So he was given merely a time of 5 weeks. 5 weeks time to decide the boundary ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो पंजाब का जो डिवीजन और जो बंगाल का डिवीजन हुआ है वो किया सर रैडक्लिफ ने। एंड दैट इज वाई द बाउंड्री लाइन ऑफ ऑन बोथ द रीजन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हियर इज कॉल्ड द रैडक्लिफ लाइन। ओके, तो 5 हफ्तों में उन्होंने ये बंटवारा कर दिया। और 15th अगस्त 1947 को भी किसी को ये नहीं पता था इन रीजन्स में कि टुवर्ड्स विच साइड दे फॉल। तो द बाउंड्री अवार्ड या जो बाउंड्री कमीशन की जो रिपोर्ट थी, दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 17th अगस्त 1947। ओके, तो समझ लीजिए कि जब आज़ादी के दिन इन जगहों में इसीलिए इतने दंगे हो रहे थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है और या फिर इंडिया में है। बहुत कन्फ्यूजन था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस बाउंड्री कमीशन इज दैट सर रैडक्लिफ गेव एन इंटरव्यू टू वन ऑफ द जर्नलिस्ट, कुलदीप नैयर हैं हमारे, थे हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट इंडिया के। उनको एक इंटरव्यू में रैडक्लिफ ने ये कहा कि आई हैड ऑलमोस्ट गिवन लाहौर टू इंडिया, that he gave Lahore to India, but then he realized that Pakistan doesn't have any big city. So then he reverted this decision and gave Lahore to Pakistan. ये बहुत बाद में ये डिस्क्लोज हुआ था, ऐसा उन्होंने खुद सर रैडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम, पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। और जो सबसे ज़्यादा वायलेंस था वो इसीलिए इनके यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। And the last and the fourth most crucial problem was the minorities on both the sides। कि जो दोनों तरफ जो इंडिया में माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो थे बेसिकली, और जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ जो हिंदू, सिख्स और सिंधी ये लोग फंसे हुए थे, इनका क्या होगा, व्हाट अबाउट देम। एंड दे बिकेम द विक्टिम टू अट्रॉसिटीज ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑन बोथ द साइड्स। दोनों ही कंट्रीज में हुआ, जबकि दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स ने ये बहुत क्लियरली कहा कि हमें माइनॉरिटीज को सेव करना है, हमको उनको मरने नहीं देना है, हमको उनको बचाना है। उनको अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए। It was said by Jinnah also and it was said by Nehru also. And Mahatma Gandhi so almost devoted himself entirely to this cause, कि किसी भी तरह से दंगे ख़त्म किए जाएं और उनको बचाया जाए। तो आपकी बुक में देखिएगा 2 पेज हैं जिसमें कि एक छोटा सा एक्सर्ट दिया हुआ है फ्रॉम जिन्ना एंड फ्रॉम नेहरू। रीड दैट एक्सर्ट एंड देन you'll see that Jinnah also talked of communal harmony, and his tone was very secular at that time when he was talking that that minorities have to be have made to feel safe. We have to make them feel safe। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम्स बेसिकली थी इन द प्लान ऑफ पार्टीशन, विच इज अ वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब ये लिखने में तो बहुत ही, मतलब आप लोगों को सब बहुत ही पता है, इससे बहुत ज़्यादा पता है। तो 47 में जो दोनों साइड्स में यहाँ से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट करने लगी पाकिस्तान की तरफ, and from Pakistan the Hindu population, Sikhs and Sindhis started coming to India। So around, ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अदरवाइज ये आंसर बहुत जनरल लगेगा। तो 80 लाख पीपल, इट इज़ द बिगेस्ट माइग्रेशन
all over the history that happened in India at that time. बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, और लोग जो थे मेजरली जो थे वो बाई फुट थे। अब आजकल जब मजदूर पैदल जा रहे हैं तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो जब उतने 80 लाख पीपल जब जा रहे होंगे और उस समय जो सुविधाएं थी वो भी कैसी थी वो आप सबको पता है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो उस समय कितना, और कम्युनल राइट्स का एक माहौल था, तो बहुत लोग मारे गए थे इसमें। these were large scale, they were large scale communal killings, especially in the cities like Lahore, Kolkata, Amritsar. They became divided into communal zones. In the last video I suggested you few films, मैंने कहा कि आप वो जो आपने सीरियल शायद वो देखा हो, देखिए उसमें उन जो कुछ आप पढ़ते हैं ना, देखिए ये जो डेटा है ये डेटा गवर्नमेंट के होते हैं, तो ये एक नंबर है, 5 to 6 लाख पीपल वर किल्ड। अगर आपसे पढ़े तो इट इज अ नंबर। व्हेन यू रीड दोज नॉवेल्स, दोज बुक्स, द आई विटनेस अकाउंट्स, व्हेन यू सी द पिक्चर्स, एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी उस टाइम की जिन्होंने इंडिया उस समय विजिट किया था, उनका नाम इफ आई कैन रिमेम्बर, इट इज मार्गरेट बर्क वाइट। यस, मार्गरेट बर्क वाइट। इनकी पिक्चर्स, इन्होंने फोटोज ली थी, जो फोटोज देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा द एक्सटेंट ऑफ किलिंग एंड द हॉरर ऑफ पार्टीशन। अगर हम लोग कहते हैं कि एक तरह से जो होलोकॉस्ट है, नाजी होलोकॉस्ट है, वो उससे किसी तरह भी कम नहीं था। इतना बुरी तरीके से उस तरह समय का कम्युनल वायलेंस था। और इट इज़ अ टेरिफाइड पिक्चर, मतलब वो आप अभी भी अगर आप पढ़ें और उसको देखें और उसको सुने तो इट टेरिफाइज यू। देन थाउजेंड्स ऑफ विमेन वर अबडक्टेड। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर है सनी देओल की, देखिएगा, गदर। उस मूवी का थीम ही यही है, दैट द विमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर एंड दे वर मेड टू कन्वर्ट टू अदर रिलीजन एंड मैनी अ टाइम्स ऑनर किलिंग जो आप लोग आजकल सुनते हैं आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, ये उस टाइम हो रही थी। पीपल वर किलिंग दी विमेन ऑफ देयर ओन फैमिली, देयर ओन मदर्स, डॉटर्स, वाइफ्स। उनको पॉइजन दे रहे थे लोग टू सेव देयर ऑनर, to save themselves falling into the hands of the writers। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और इन दी इफ़ यू सक्सेसफुली क्रॉस द बॉर्डर, और जब वो क्रॉस करके बॉर्डर दूसरी तरफ जा रहे थे, यहाँ से बड़े बड़े कोठियों लोगों ने अपनी छोड़ दी, घर छोड़ दिए। दूसरी तरफ जब गए तो वो फुटपाथों पे रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का हाल हो गया था। तो इफ़ यू कैन फाइंड, वो दिल्ली में बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप था, और उस साइड भी बहुत बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स थे। और अभी भी लाइक आई नो मैनी पीपल whose forefathers, whose grandfathers came to India at the time of partition, and when they tell their stories that they left their bungalows and they came somehow in the train or by road and then started all from the scratch again, all over again. So the stories, there are many stories of that time of the partition. ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बुक्स की ही पिक्चर है। इसमें गांधी जी, वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, सो ही वॉज इन नौखाली इन वन ऑफ द एरियाज ऑफ बंगाल वेयर which was which had become very violent। बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स उस एरिया में हो रहे थे और किलिंग्स हो रही थी, और गांधी जी वहाँ जाके रहे थे और वहाँ पे उन्होंने फास्ट किया और फिर वहाँ पे उसको बिल्कुल शांत किया। तो नोआखाली की कहानी अपने आप में एक अजूबा है, जिसके लिए माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी जी इज़ द वन मैन आर्मी, कि वो एक अकेले आदमी उन्होंने पूरा शांत कर दिया दंगा। और यहाँ हम लोग की पूरी मशीनरी लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एंड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द कम्युनल राइट्स। फिर it was not merely, partition was not merely the division of territory, it was also the division of resources। एक एक चीज़ का बंटवारा, कि जो ऑफिसेज में जो रिसोर्सेज है, टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स,
बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पे भी एक फिल्म में मैंने एक देखा था कि वो वाइसरॉय हाउस का जो एम्प्लॉयज थे उनको बांटा जा रहा था, और उसकी वाइसरॉय हाउस जो नाउ इट इज़ द राष्ट्रपति भवन, तो उसका, उसके एम्प्लॉयज और उसके जो रिसोर्सेज थे, प्रॉपर्टी, उसमें जो सामान था उसका किस तरह से बंटवारा हो रहा था। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स अक्रॉस इंडिया, दे हैव रिटन ऑन दिस, दे हैव नरेटेड इट, और अभी भी इसके ऊपर बहुत सी मूवीज, इस बैकग्राउंड को लेके मूवीज बनती हैं, नॉवेल्स लिखी जाती हैं। तो actually, if you have to know the history of a time, you should see it from the eyes of common people, and that's when you realize that what mistakes we have done in the past, in history. तो सबक अगर लेना है तो उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो जब भी ये कम्युनल डिसहार्मनी होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लोगों के ऊपर होता है, और वो लोगों के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, अगर वो आप पढ़िए तो यू विल नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप that the leaders using religion for their self interest. So I feel that somehow this process of partition, the consequences, whatever it is, it gives us a very big lesson. And that lesson is that you have to keep your eyes open and see what is happening behind the curtain. That is more important. Okay, so that is it for this video. In the next video, I'll be discussing the major problem, the first challenge that is discussed, that is the integration of the country, the integration of the princely states. Okay, so please stay tuned and keep watching the videos, keep giving your feedback. That's it. So hope to see you again in the next video. Thank you. Bye bye.